दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के बारे जो आप कह रहे हैं, ये तो सच है कि पिछले सप्ताह उन्होंने पहले एक मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, और उसके 3 दिन के बाद फिर एक और मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि बहुत ही शॉर्टेज है, क्राइसिस सिचुएशन है। ये हो सकता है कभी प्रदेश राज्य सरकार गलतियां कर सकते हैं असेसमेंट में, लेकिन एक माहौल बना है। अब दिल्ली के जो रूलिंग पार्टी के कई सदस्य हैं, महाराष्ट्र में हैं, बंगाल में तो है ही हैं, जो केवल आरोप ही आरोप लगाने में वो व्यस्त हैं। लेकिन जब वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, जब वो खुद उनका अटेंशन कुछ और पर है, जैसे कि यहाँ दिल्ली में उनका अटेंशन है विज्ञापन देना का, शासन का कम। बंगाल में तो जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है, वो उनका अलग मामला है। और महाराष्ट्र के बारे सब जानते हैं, जिस तरह का सुशासन छोड़कर वो हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो क्राइसिस है, ये एक नेशनल क्राइसिस केवल नहीं है, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। और आप जिसी भी एंगल में एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करके आंकड़े देखें तो भारत ने सबसे बेहतर इसको टैकल किया है। ये तो सच है, अभी बहुत गंभीर स्थिति है, लेकिन हम इसको संभालेंगे। जो अभी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस पर बार बार रिव्यू ले चुके हैं, और केंद्र सरकार के कई मंत्रियां दिन रात लगे हुए हैं, जैसे कि रेमडेसिविर का सप्लाई बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा और स्पेसिफिकली डाइवर्ट होगा उन्हीं क्राइसिस एरियाज को। हॉस्पिटल बेड्स के लिए सबको याद होना चाहिए कि पिछले साल माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली सरकार की स्थिति को संभालने के लिए 2 बार उनको इंटरवीन करना पड़ा और टेम्पररी हॉस्पिटल्स वगैरह बना के कोविड की स्थिति को कंट्रोल में ला चुके थे। तो ऐसा ही किया जा रहा है और इसको एक नेशनल स्पिरिट में देखना चाहिए। See, as you have pointed out, just last week the Chief Minister of Delhi first had a media interaction where he said there is plenty of oxygen, plenty of hospital beds, and just 3 days later he had another media interaction saying there is a terrible shortage of oxygen and remdesivir and beds. So when state governments themselves are so clueless about the actual situation, it's no surprise that cases take them by surprise, and there is such a crisis-like situation that a lockdown has to be imposed by the state government. But the reality is, it's not just Delhi. If you look at Bengal, you look at Maharashtra, you have a few state governments who are focused only in playing the blame game. And certain opposition leaders also, including very senior people, are just playing the blame game. And that's not correct, because this COVID crisis is not just a national crisis, it's a global crisis. And if you look at it from any angle, and if you do apples to apples comparison, then India has arguably done the best among all countries in containing it. Yes, we have a current surge, like many other countries have had, which is very significant, and we need to take all measures to control it. And you can see that the Prime Minister himself is repeatedly reviewing the situation. Many union ministers are working day and night to speed up the production of vaccines and remdesivir and oxygen and direct them to the appropriate places. And just like last year, the Home Minister himself had to intervene in Delhi to set up temporary hospitals to bail out Delhi's COVID crisis of that time. Similarly, we need to take many measures to boost, and that's being done. And we should see this in a national spirit and not play politics on it like certain opposition leaders are doing. Look, the whole world is praising our Prime Minister. And if you go around our country, the vast majority of Indians are praising our Prime Minister. It's a well-known fact that over the last 1 year, if there are 1 or 2 or 3 leaders in the world whose popularity has increased because of their handling of the pandemic, then our Prime Minister's name certainly is at the very top of that list. This is validated by any way. I mean, you look at the surveys, you go and speak to people in the villages. Opposition is playing politics, and this is not something they should be doing on a crisis of this magnitude.
and all I can say is that they really should on some issues put the nation first. देखिए, पिछले 1 साल 14-15 महीने में अगर आप देखें, सारी दुनिया हमारी प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा कर रही है. अगर दुनिया में ऐसे कोई 1, 2, 3 नेता हैं जिनका पॉपुलैरिटी पिछले 1 साल में और भी ऊपर गया है, बढ़ा हुआ है, तो उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी का नाम टॉप में ही रहेगा. और ये हमारे देश में भी इतने सारे, आप ओपिनियन पोल्स छोड़िए, आप जाके गांव में किसी से पूछिए, लोगों का मत है कि मोदी जी ने जिस तरह का मुकाबला किया है कोरोना का, ये देश बच गया. नहीं तो जो स्थिति थी वो तो बिल्कुल डूबने वाली स्थिति थी. और अब जो फिर दोबारा एक वेव शुरू हो गया है. आप देखिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने खुद इसको रिव्यू करते हैं बार बार, और उनके कैबिनेट में से कई सदस्य फोकस्ड काम कर रहे हैं दिन रात, कैसे रेमडेसिविर का सप्लाई बढ़ा जाए, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ा जाए, कैसे टेम्पोररी हॉस्पिटल लगा जाए. जैसे कि हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में कल और आज मिलकर 200, 400 बेड का हॉस्पिटल कोविड के लिए डेडिकेट किया गया है. ऐसे बहुत काम किया जा रहा है. तो ऑपोजिशन नेता जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये दुख की बात है. ऐसे कुछ मुद्दे होने चाहिए. ये एक नेशनल ग्लोबल इशू है जहां की वो अपने राजनीतिक एम्स को थोड़ा साइड को रखकर देश के लिए सोचें. देखिए, पार्लियामेंट का सेशन तो ऐसे नहीं बुलाया जाता है आदरणीय स्पीकर महोदय जो पार्लियामेंट के विभिन्न पार्टीज के लीडर्स के साथ कंसल्ट करके वो निर्णय लेते हैं कब बुलाया जाएगा, किस टाइम से. यही है सिस्टम, यही है रूल. कोई एक पार्टी के कहने से तो नहीं होता है. तो ये माननीय स्पीकर इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन ये तो देखना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार जिसको इस पार्टी ने चला रही है, इसकी स्थिति क्या है, और वहाँ कोरोना का जो स्थिति है, हाल है, बहुत ही सांघातिक है. और उस बीच में पिछले इतने हफ्ते में जिस तरह के उनके शासन के बारे प्रश्न उठे हैं, पुलिस के बारे, वो उसको पहले टैकल करना चाहिए. और पार्लियामेंट कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, जो सिस्टम है उसी हिसाब से होगा.